ریڈیو پاکستان۔ خلائی تحقیق کے عالمی ہفتے کی مناسبت سے ریڈیو پاکستان کراچی کا تیار کردہ خصوصی دستاویزی پروگرام سنیے، خلائی تحقیق کا عالمی ہفتہ۔ راوی عمران ایوب، تحریر خالد حسن۔ سامعین، انسان کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکے۔ اسی سلسلے میں انسان ہمیشہ نئی نئی ایجادات اور تخلیقات میں مصروف رہا ہے۔ کبھی انسان کی خواہش رہی کہ وہ آسمان میں پرندوں کی طرح پرواز کرے۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے ہوائی جہاز بنائے گئے اور انسان نے بلندیوں کا سفر شروع کر دیا۔ انہی بلندیوں کو سر کرتے ہوئے انسان خلا میں جا پہنچا اور اس کے بعد خلائی سائنس کا آغاز ہوا۔ Nozzle check of the SRBs. Firing chain is armed. Now suppression water system armed. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 بے تحاشا کوششوں کے بعد سوویت یونین نے 4 اکتوبر 1957 میں پہلا مصنوعی سیارہ خلا میں روانہ کیا۔ اس کے بعد چاند اور نظام شمسی میں موجود سیاروں کے بارے میں معلومات حاصل ہونا شروع ہوئی۔ خلا نورد یعنی ایسٹروناٹس اس بات کی تلاش میں رہے کہ اس نظام شمسی اور اس میں موجود سیاروں کو کس طرح انسان کی فلاح اور استعمال کے قابل بنایا جائے۔ اس جستجو اور خواہش کی تکمیل کے لیے 4 اکتوبر 1957 کو خلا میں چھوڑا جانے والا مصنوعی سیارہ 4 سال بعد 12 اپریل 1961 میں واپس آیا اور اس طرح روسی خلاباز یوری گیگرین زمین کے گرد چکر لگانے والے پہلے خلاباز بنے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا۔ دنیا کے تمام ترقی پسند ممالک نے خلائی تحقیق کا سلسلہ شروع کیا اور ناسا نے خلائی تحقیق کے مختلف شعبہ جات قائم کیے، جنہوں نے اس خلائی تحقیق کو نئے انداز سے دنیا کے سامنے پیش کیا اور خلائی تحقیق کے نئے نئے مراکز قائم کیے، جن میں ایمز ریسرچ سینٹر، ڈرائیڈن فائٹ ریسرچ سینٹر، لوئس ریسرچ سینٹر، گارڈرڈ اسپیس فلائٹ ریسرچ سینٹر قابل ذکر ہیں۔ عالمی خلائی ہفتہ ہر سال 4 سے 10 اکتوبر تک اس واقعے کی یاد میں منایا جاتا ہے جب 1957 میں پہلا خلائی سیارہ اسپوٹنک 1 خلا میں چھوڑا گیا اور 10 اکتوبر 1967 کو بیرونی خلائی معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ آئی ایس پی اے کے چیئرمین پروفیسر جاوید اقبال کہتے ہیں، یونائٹڈ نیشن نے اکتوبر 4 سے اکتوبر 10 تک کو جو ہے ورلڈ اسپیس ویک ڈکلیئر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1957 میں پہلا خلائی سیارہ جو اسپیس میں بھیجا گیا، جس کا نام اسپوٹنک 1 تھا، وہ اکتوبر 4 تاریخ کو بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے 1967 میں جو ہے باقاعدہ 10 اکتوبر سے جو ہے اسپیس ایکسپلوریشن کا آغاز ہوا۔ تو اس مناسبت سے یونائٹڈ نیشن نے 4 اکتوبر سے 10 اکتوبر کو باقاعدہ جو ہے اسپیس ویک کا جو ہے نام دیا۔ الحمدللہ پاکستان بھی 2005 سے اسپیس ویک مناتا ہے۔ اس اسپیس ویک کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عوام میں اسپیس سائنس کی ایجوکیشن کی اویئرنیس پیدا کرنا، اسپیس سائنس کی امپورٹنس بتانا۔ دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور خلائی دوربین سے نظام شمسی کے سب سے بڑے سیارے مشتری کی انتہائی شاندار اور حیران کن تصاویر لی گئی ہیں۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کی جیمز ویب خلائی دوربین سے لی گئی ان تصاویر کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان تصاویر میں قطبی روشنیاں، دیو ہیکل طوفان، مشتری کے گرد چاند اور حلقے دیکھے جا سکتے ہیں، جن کی مدد سے سائنسدانوں کو اس سیارے کے اندرونی حالات کے بارے میں مزید اشارے ملیں گے۔ آئی ایس ٹی کے شعبہ اسپیس سائنس کے سربراہ اور نیشنل سینٹر آف جی آئی ایس اینڈ ایپلیکیشن اسپیس کے چیئرمین نجم عباس نقوی نے بتایا، ہمیشہ ورلڈ اسپیس ویک ایسوسی ایشن دنیا بھر کے لیے ایک موضوع کا انتخاب کرتی ہے اور اس دفعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے
स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि खला और उसकी पायदारी। इस थीम के अंडर दो बातें आती हैं। एक तो ये कि खला में सस्टेनेबिलिटी कैसे है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त कोई 8,000 के करीब ऑब्जेक्ट्स हैं जो जमीन के गिर्द घूम रहे हैं। उनमें से तकरीबन 4,500-5 हजार जो हैं वो लाइव हैं, यानी कि वो अभी भी जिंदा हैं, और बाकी 3,000 के करीब ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि डेड हो चुके हैं। अब इसका मतलब ये है कि जमीन के गिर्द कोई 8,000 के करीब मुख्तलिफ सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, और उनमें से कुछ खत्म हो चुके हैं, कुछ जिंदा हैं। जो जिंदा हैं वो हमें मुख्तलिफ मालूमात दे रहे हैं, लेकिन जो खत्म हो चुके हैं वो अगले जाने वाले सैटेलाइट्स के लिए खतरा भी बन जाते हैं। इन्हें स्पेस डेब्री कहते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में जहां स्पेस टेक्नोलॉजी में और बहुत सारा काम हो रहा है, तो ये काम भी हो रहा है कि किस तरीके से इस डेब्री को खत्म किया जाए। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है कि खला में जो भी डेब्री है उसको खत्म कर दिया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा सके। और दूसरी तरफ जो इस मौजू से ताल्लुक है वो ये है कि खलाई टेक्नोलॉजी से जमीन पर सस्टेनेबिलिटी कैसे हासिल की जा सकती है, और उसके लिए कहा यह जाता है कि यूनाइटेड नेशंस के जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको हासिल करने के लिए स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 17 गोल, चाहे उसमें नो हंगर है, फूड है, वाटर है, एनवायरनमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब गोल्स को जो कि यूनाइटेड नेशंस के एजेंडा में शामिल है, इनको हासिल करने के लिए हम स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं। और उसके लिए वही सैटेलाइट्स जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं, नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं, या कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं। ये हफ्ता पूरी दुनिया में बहुत अहमियत का हामिल है, और पाकिस्तान की तरफ से हमें फख्र है कि हम पिछले 10 साल से हमेशा इस आलमी हफ्ते में पहले 5 नंबरों में होते हैं, और पिछले साल तो हम नंबर 1 पर थे, पाकिस्तान जिसने सबसे ज्यादा इवेंट्स का इनेकाद किया। और इस साल भी हमने 75 से ज्यादा कॉम्पिटिशन्स का इनेकाद किया, जिसमें 40 से ज्यादा स्कूलों के कोई 3,000 के करीब बच्चों ने शिरकत की। तमाम तहकीकी मराकज में खलाई तहकीक के साथ साथ जंग के दौरान दुश्मन के ताक़ुब के लिए भी आलात का इस्तेमाल होता है। इन मराकज में न सिर्फ रूस, अमरीका या किसी तरक्की याफ्ता ममालिक के बाशिंदे ही अपने फराज अंजाम नहीं दे रहे, बल्कि दुनिया भर से काबिल और खलाई तहकीक पर गिरफ्त रखने वाले अफराद को बुलाया जाता है और उनकी खिदमात हासिल की जाती है। जहां नासा अपने खलाई तहकीकी मराकज में इंसानी फलाह के काम अंजाम दे रही है, इसी के साथ साथ हर उस तालिब इल्म के साथ भरपूर ताउन भी करती है जो इस शोबे में तहकीक का शौक रखता है। नासा की पॉलिसी में इस बात का ख्याल रखा गया है कि अगर कोई तालिब इल्म किसी किस्म के आलात के बारे में मालूमात हासिल करना चाहे तो नासा के सदर दफ्तर या हिस्ट्री डिवीजन से राब्ता कर सकता है। नासा के ग्लेन रिसर्च सेंटर में एक तकनीकी लाइब्रेरी है जहां से आप माजी में की जाने वाली खलाई तहकीक के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकते हैं। नासा ने न सिर्फ खलाई तहकीक के काम को आगे बढ़ाया, बल्कि इसके मुहक्किकीन ने जमीन और समंदर के बारे में भी अपनी राय का इजहार किया। नासा के बनाए हुए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की मदद से माहौलियाती तब्दीली के बारे में मालूमात हासिल की जा सकती हैं। वक्त के साथ साथ समंदर की सतह में तब्दीली, पाकिस्तान और कई दूसरे ममालिक में दरियाई सैलाब का आना और दरख्तों की कटाई की वजह से दर्जे हरारत की दिन ब दिन तब्दीली को भी इसके निजाम और आलात से जांचा जा सकता है। खलाई तहकीक सिर्फ इदारों और मुल्कों के लिए ही नहीं, बल्कि एक आम आदमी के लिए भी बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित हो रही है। इसकी एक आम सी मिसाल गूगल अर्थ है। इस एप्लीकेशन का आगाज 1990 के आखिरी सालों में हुआ। इस एप्लीकेशन के जरिए खलाई तस्वीर की मदद से जमीनी रास्तों और जमीन पर होने वाली तब्दीलियों को बासानी देखा जा सकता है। वो खलाई तहकीक जिसको सिर्फ जंग के लिए या तरक्की याफ्ता ममालिक अपनी तरक्की को मजीद तेज करने के लिए इस्तेमाल करते थे, आज वही खलाई तहकीक एक आम आदमी के लिए मददगार साबित हो रही है। इस शोबे में पाकिस्तान ने भी दुनिया के साथ कदम मिलाकर अपनी खलाई तहकीक को आगे बढ़ाया। क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान में नए तालीमी इदारों का क़याम अमल में आया। इन तालीमी इदारों में तदरीस के साथ साथ तहकीक के अमल पर भी जोर दिया गया। 1952 में जब जामिया कराची का वजूद अमल में आया तो उस वक्त भी खलाई तहकीक की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया गया और शोबे रियाजी में खलाई तहकीक का एक मजमून पढ़ाया जाने लगा जिसको एस्ट्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है। जून 1962 में नासा और अमरीकी फजाइया के ताउन से पहला रॉकेट रहबर 1 खला में रवाना किया
और शानदार कामयाबी हासिल की। इस तरह पाकिस्तान, जापान और इसराइल के बाद एशिया का तीसरा मुल्क बन गया जिसने खलाई तहकीक का शानदार इस्तकबाल किया। इस खलाई तहकीक के अमल को मुस्तकिल मिजाजी के साथ जारी रखने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 1961 में स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन यानी सिपार्को को कायम किया और 1961 में ही डॉक्टर अब्दुल सलाम की सरबराही में एक कमेटी कायम की गई जो सिपार्को में होने वाली तहकीक और उसकी हिकमत अमली वज़ा करेगी। रहबर 1 के बाद सिपार्को ने अपना नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कायम किया जो रिसेंट के नाम से जाना गया। सिपार्को मुख्तलिफ अदवार में नशेबो फराज से गुजरा, मगर सन 2000 में सिपार्को को नेशनल कमांड एंड अथॉरिटी के तहत मंजूर किया गया। 2004 में सिपार्को ने मुल्क का पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तैयार किया। इस मंसूबे को पाकसैट 1 रिप्लेसमेंट का नाम दिया गया। 9 जुलाई 2018 को चीन ने पाकिस्तान के साथ एक नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट निजाम लॉन्च किया और इसको चीन पाकिस्तान राहदारी के साथ मुंसलिक किया गया। मार्च 2019 में सिपार्को ने दुबई में होने वाली ग्लोबल स्पेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके पाकिस्तान में होने वाली तहकीक और काविशों को दुनिया के सामने पेश किया, जिससे दुनिया भर में पाकिस्तान का खलाई तहकीकी काम उजागर हुआ, जिसको दुनिया ने सराहा। इस इक़दाम से पाकिस्तान में आइंदा भी खलाई तहकीक और इसकी अहमियत को उजागर करने में बड़ी मदद मिलेगी। 1994 में खलाई तहकीक का एक मुनफरिद शोबा ISPA बनाया गया, जहां खलाई अमल के खदुखाल के साथ साथ खलाई तहकीक के फन से भी तलबा को रोशनास कराया गया। ISPA के चेयरमैन प्रोफेसर जावेद इकबाल कहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड प्लानिटरी एस्ट्रोफिजिक्स का क़याम 1994 में जामिया कराची में एक रिसर्च के इदारे के तौर पे हुआ। इस इदारे का बुनियादी मकसद स्पेस साइंस यानी कि खलाई मैदान में रिसर्च करना था। शुरू में हमने MPhil और PhD प्रोग्राम का स्टार्ट किया, तो हमने मुख्तलिफ स्पेस साइंस के मज़ामीन में PhD प्रोड्यूस किए। इसमें एस्ट्रोनॉमी में, आयनोस्फेरिक फ़िज़िक्स, ओजोन लेयर, हाइड्रोलॉजी वगैरह में हमारे यहाँ से मुख्तलिफ मज़ामीन में। इसी तरह से स्टार फॉर्मेशन पे भी हमारे एक स्टूडेंट ने PhD किया। 2016 में हमने जो है अंडर ग्रेड यानी कि BS प्रोग्राम स्पेस साइंस में स्टार्ट किया है। इसमें हम जो है स्टूडेंट को स्पेस साइंस के मुख्तलिफ मज़ामीन में जो है तालीम देते हैं। ख़ास तौर पे जब ये स्टूडेंट फाइनल ईयर में पहुंचते हैं तो हम जो है 5 डिफरेंट फील्ड में स्पेशलाइजेशन ऑफ़र करते हैं। पहली जो है स्पेशलाइजेशन है वो एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिज़िक्स में है। इसके अलावा दूसरी जो स्पेशलाइजेशन हम ऑफ़र करते हैं वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। इसके अलावा थर्ड जो स्पेशलाइजेशन है वो एरोस्पेस साइंस है। इसके अलावा जो है हम एटमॉस्फेरिक फ़िज़िक्स में, रिमोट सेंसिंग एंड GIS में भी जो है हम स्पेशलाइजेशन ऑफ़र करते हैं। हमारे स्टूडेंट जो हैं एरोस्पेस साइंस में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट मिसाल के तौर पे जो मुख्तलिफ रिमोट कंट्रोल जहाज़ जो होते हैं, ड्रोन होते हैं, वो रिमोट कंट्रोल फ़्लाइट जिसको हम बोलते हैं RC फ़्लाइट, वो डिज़ाइन करते हैं, वो ख़ुद बनाते हैं। इस इदारे के फारिकुल तहसील तलबा पाकिस्तान और दुनिया भर के तहकीकी इदारों में अपनी तहकीक के जौहर दिखा रहे हैं। मोहतरमा हिरा फातिमा ISPA में PhD की तालिबा हैं और यहाँ की विजिटिंग फैकल्टी का हिस्सा भी हैं। वो कहती हैं कि स्पेस साइंस का मुस्तकबिल ताबनाक है। स्पेस साइंस पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप टोटली स्पेस के बारे में पढ़ रहे होंगे। स्पेस साइंस में भी शामिल हो जाता है कि आप किस तरीके से स्पेस को यूज़ करते हुए अर्थ पे ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ये सारी सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है, ये जो हम सेलुलर नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, ये सब स्पेस साइंस की बदौलत है। दुनिया जो है वो स्पेस साइंस में बहुत आगे जा चुकी है और ये वक्त है कि पाकिस्तान भी स्पेस साइंस में जो है वो बहुत आगे जाए। पहले दुनिया में जो टेलीस्कोप्स होती थी वो ज़मीन पे होती थी और अब जो है इंसान ने टेलीस्कोप्स को भी स्पेस में भेज दिया और स्पेस में जो डीप ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट गैलेक्सीज़ हैं, उनको हम देख रहे हैं। और उन गैलेक्सीज़ को देखने के अलावा हमारी अपनी गैलेक्सी में जो स्टार्स हैं, अब हम उनको बहुत ही बारीकी से देख सकते हैं। यानी कि जैसा हमारा सोलर सिस्टम है, हमारे सन के गिर्द प्लैनेट्स हैं, हमें पता चला कि दूसरे भी ऐसे स्टार्स हैं जिनके गिर्द प्लैनेट्स मौजूद हैं, जिनको हम कहते हैं एक्सो प्लैनेट्स। तो इसका मतलब ये है कि कायनात में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी एक्सप्लोर किया जा चुका है, बहुत कुछ ऐसा है जिसको एक्सप्लोर करना बाकी है और वो सब जो है हम स्पेस साइंस में आगे बढ़ते हुए ही कर सकते हैं।
इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी भी इस बात की जमानत है कि पाकिस्तान खलाई तहकीक के शोबे में आगे से आगे बढ़ना चाहता है। इस खलाई तहकीकी मरकज का क़याम 2002 में इस्लामाबाद में अमल में आया। जी, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है कि जो कि 2002 में कायम हुआ और इसका मकसद स्पेस साइंस, टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस के फील्ड में ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करना था। ये इंस्टीट्यूट जब शुरू होता है तो यहाँ पर एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स का एक डिपार्टमेंट है और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग। सामीन, जहाँ खलाई तहकीक और खुसूसन पाकिस्तान में होने वाली खलाई तहकीक का जिक्र हो, वहाँ निम्रा सलीम का जिक्र भी जरूरी है। आप पाकिस्तान की पहली खलानवर्द हैं जिन्होंने सबसे पहले खला का सफर किया। आपने अप्रैल 2007 में नॉर्थ पोल और जनवरी 2008 में साउथ पोल का सफर किया और तारीख के औराक में अपना नाम भी दर्ज करवाया। आप एक खलानवर्द ही नहीं बल्कि वो कामयाबी का निशान है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में तहकीक के तालिब इल्म इस निशान तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के साथ साथ कई दूसरे जनूबी एशियाई मुमालिक ने भी इस तहकीक में हिस्सा डाला। अगर खलाई तहकीक का जिक्र किया जाए तो कल्पना चावला का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। आपका ताल्लुक भारत से था। आप पहली भारतीय खातून थीं जिन्होंने खलाई सफर का आगाज 1977 में किया। अगर खलाई तहकीक के हवाले से दीगर जनूबी एशियाई मुमालिक की बात की जाए तो बांग्लादेश का जिक्र भी जरूरी है। बांग्लादेश भी खलाई तहकीक में अपने पांव जमाने के लिए स्पेस रिसर्च एंड रिमोट सेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में लाया। इसके साथ साथ बांग्लादेश के रहने वालों में भी इस तहकीक का रुझान पैदा हुआ। इसकी मिसाल बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाली खलाई साइंसदान महमूदा सुल्ताना है, जो नासा के गर्डर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में एक साइंसदान की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के अलावा श्रीलंका में एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ईरान में इरानियन स्पेस रिसर्च सेंटर और अफगानिस्तान में स्पेस जनरेशन एडवाइजरी काउंसिल खलाई तहकीक पर काम कर रही हैं। अब सवाल ये है कि ये इदारे किस तरह इंसान की जिंदगी को बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। एक आम मुशाहिदा है कि ये खलाई तहकीक एक आम आदमी के लिए करामत साबित हो रही है, क्योंकि आप अपने घर में बैठे बैठे नेविगेशन या गूगल ऐप के जरिए ट्रैफिक और कई दूसरी मालूमात फौरन हासिल कर लेते हैं। खलाई तहकीक की अहमियत को समझते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी 1985 में खलाई तहकीक का एक मरकज कायम किया, जिसको शोबा फल्कियात का नाम दिया गया, जहां नासा ने खलाई तहकीक, खलाई खदुखाल और इसकी अहमियत को उजागर किया। इसी तरह नासा ने निजाम शमसी में होने वाले हादसात और उनके तबाहकुन असरात से बचने के लिए अपनी तहकीक का दायरा वसी से वसी किया, जिसका एक मकसद जमीन के करीब आने वाले सैयारों और उनके तबाहकुन असरात से बचाना था। नासा ने ये एहतियाती इक़दाम 2013 में चेलियाबिंस्क के धमाके के बाद किया। नासा की ये तहकीक उसकी वेबसाइट पर भी दस्तयाब है, बल्कि एक किताब की शक्ल देकर भी इन मालूमात को तहकीक करने वालों तक अरसाल किया गया है। इस किताब का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट रिसर्च। नासा अपनी की गई तहकीक को और तहकीक के दौरान होने वाले वाकयात और नताइज को बड़ी खूबसूरती से समझाता है कि पढ़ने वालों को ये महसूस होगा कि शायद वो खुद ही इस तहकीक का हिस्सा हैं। आज अवामुन्नास अपने स्मार्टफोन से गूगल मैप और दूसरी एप्लीकेशन के जरिए अपने सफर को आसान बना रहे हैं। ये सब खलाई तहकीक का ही मरहून मिन्नत है। IST के शोबा स्पेस साइंस के सरबराह और नेशनल सेंटर ऑफ GIS एंड एप्लीकेशन स्पेस के चेयरमैन नजम अब्बास नकवी ने बताया, इस वक्त दुनिया भर में जो खलाई टेक्नोलॉजी है वो कमर्शियल लेवल पर आ रही है। पहले तो इसका ताल्लुक सिर्फ पब्लिक सेक्टर से होता था, लेकिन अब बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ना सिर्फ सैटेलाइट्स डिजाइन कर रहे हैं बल्कि लॉन्च भी कर रहे हैं और उसके बाद वहां से डेटा ले रहे हैं और वो डेटा बेच भी रहे हैं। जो ये सदी है और अगले आने वाले 10 और 20 साल अगर मैं ये कहूं कि वो खलाई टेक्नोलॉजी के हैं तो ये गलत ना होगा, क्योंकि अभी अगर आप देखें कि हमारी बहुत सारी चीजें, चाहे वो गूगल मैप्स हैं जिसके तहत हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या बात हो रही है ड्राइवरलेस कार्स की जिसमें कि ड्राइवर नहीं होगा और कार चल रही होगी, या इस वक्त जितनी भी मार्केटिंग में टेक्निक्स यूज हो रही हैं, जिस फूड डिलीवरी या आपके जितने भी चीजों के डिलीवरी सिस्टम है जो कि सिर्फ आप मैप के थ्रू कर रहे हैं, तो इन मैप्स और पोजीशन के पीछे भी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स हैं जो कि कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स हैं। और अगले दौर में पोजीशन और ये इमेजेस और कम्युनिकेशन, ये तीन ऐसी इंफॉर्मेशन हैं कि जो हर जगह पर आ जाएंगी
اور اس کے بغیر گزارا مشکل ہے. اور جہاں تک ریسرچ کی بات ہے تو اس وقت سیٹلائٹ ڈیولپمنٹ میں بھی ریسرچ ہو رہی ہے, اور سیٹلائٹ سے ملنے والے امیجز یا سیٹلائٹ سے ملنے والی پوزیشن یا سیٹلائٹ کے کمیونیکیشن سگنلز, انہیں ہر چیز کے اندر لنک کیا جا رہا ہے. اگر وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہے تو وہ بھی اب سیٹلائٹ کے ساتھ, سیٹلائٹ امیجز کے ساتھ لنک ہو چکی ہے. اور جتنے بھی موسمیاتی تغیر کی بات کی, گلیشیئرز کے پگھلنے کی بات کی, پہاڑوں کی بات کی, جنگلات کی بات کی, انوائرمنٹ کی بات کی, کلائمیٹ کی بات, ان سب چیزوں میں اس وقت نہ صرف پوری دنیا میں بلکہ پاکستان میں بھی بہت سے ادارے ہیں جو اس میں کام کر رہے ہیں. اور 2020 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ مل کر ایک نیشنل سینٹر آف GIS اینڈ اسپیس ایپلیکیشن ڈیولپ کیا ہے, جس کی پورے پاکستان میں 7 یونیورسٹیز میں لیبس ہیں. اور وہ ہر لیب کوئی مائننگ پہ, کہیں فورینسک پہ, کہیں ایگریکلچر پہ, کہیں انوائرمنٹ, کہیں کلائمیٹ, کہیں اسٹرانومی ایسٹروفزکس, کہیں گلوبل نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم, اور اسی کے ساتھ ساتھ اسپیس ایجوکیشن آؤٹ ریچ پر بھی بہت کام ہو رہا ہے. سامعین, ہر خلائی تحقیق کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی تحقیق کے دوران یہ بات یاد رکھے کہ کی جانے والی تحقیق انسان کے فائدے کے لیے ہی ہو, نہ کہ کسی قسم کے نقصان یا تباہی کا باعث بنے. یہ دنیا بہت ہی حسین ہے, اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے مثبت سوچیں اور مثبت اقدام کریں. سامعین, ابھی آپ خلائی تحقیق کے عالمی ہفتے کی مناسبت سے خصوصی دستاویزی پروگرام سن رہے تھے, خلائی تحقیق کا عالمی ہفتہ. راوی تھے عمران ایوب, تحریر خالد حسن, ریکارڈنگ انجینئر طارق حسن, تدوین محمد نواز, پروڈیوسر میمونہ شمیل ہورانی, نگران اعلیٰ منظور کامران. یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان کراچی کی.